صرف ایک چیز سے آپ کے بھی گندے سے گندے کپڑے صاف ستھرے ہو جائیں گے، چاہے جتنے بھی گندے اور گہرے داغ ہوں گے سارے ہی اس ایک ٹرک سے آپ کے کپڑے چمک اٹھیں گے۔ اب آپ کو واشنگ مشین میں بھی کپڑے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھوں کی مدد سے بھی آپ اپنے کپڑوں کو چمکا سکتے ہیں۔ جھاڑو پر اس طریقے سے کنگھا چلانے سے ایک ایسا راز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ساتھ کے ساتھ کچن کی گھر کی ٹپس ٹرکس آئیڈیاز بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جھاڑو پر اس طریقے سے اگر آپ نے بھی کبھی کنگھے کو نہیں چلایا تو آج آپ نے یہ والا کام لازمی کر لینا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے جھاڑو کا استعمال کرتے ہیں تو ایک پرانے کنگھے کی مدد سے اپنے اس مشکل کو آسان کر سکتے ہیں۔ اس طریقے کے جو جھاڑو ہوتے ہیں خاص طور پہ جب اپنے گھر پر لے کر آتے ہیں اور 2-4 دن لگانے کے بعد ان کے آپ نے آگے سے اس کی حالت دیکھی ہے کہ کس طریقے سے اس طریقے سے نا یہ بھربھرے سے بننا شروع ہو جاتے ہیں، آگے سے جو ان کے تنکے نا وہ بھی نا مڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جھاڑو بھی اچھے طریقے سے یعنی کہ صفائی نہیں ہوتی، جو مٹی وغیرہ ہوتی ہے نا وہ صحیح طریقے سے یہ صفائی نہیں کرتا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کوئی سا بھی پرانا سا کنگھا لے لیں گے جو بالکل بھی استعمال میں نہ ہو، جیسے کہ یہ میرے پاس ایک کلر لگانے کے لیے میں استعمال کرتی تھی لیکن اب یہ بالکل بیکار پڑا ہے تو میں اسی کا استعمال کر رہی ہوں۔ تو آپ نے جھاڑو کو اس طریقے سے نا کنگھے کو چلاتے جانا، جھاڑو کے اوپر دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے باریک باریک سے تنکے ہوں گے نا وہ سارے اپنے آپ نکل جائیں گے، اس کے بعد اس کے تنکے بالکل سیدھے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کینچی کی مدد سے آپ نے جو اس کے تنکے آگے سے مڑ چکے ہیں نا اس کی آپ نے کٹنگ کر دینی ہے، جیسے کہ آپ اپنے نارمل بالوں کی کٹنگ کرتے ہیں جب ہمارے بال دو منھے ہو جاتے ہیں، نیچے سے خراب ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے جھاڑو بھی اکثر ہمارے نا استعمال کرنے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، اس کے تنکے جو نا آگے سے مڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صفائی بھی اچھے طریقے سے بالکل بھی نہیں کرتے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے مڑے ہوئے تنکوں کو کاٹ دیں گے، سب سے پہلے ان کو سیدھا کریں گے، اس کی وجہ سے آپ نے بعد میں اس کو نا کٹنگ کر دینی ہے۔ تو یہ سارے جو ان کے تنکے نا بالکل صاف ستھرے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہماری صفائی ہے نا بہت ہی اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں نے اب دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے جھاڑ لیا ہے۔ اب آپ کو ایک جھاڑو دے کے چیک بھی کرواتی ہوں کہ اب اس کے جو تنکے نا آگے سے بالکل نا صاف ستھرے ہو گئے، کوئی بھی مڑا ہوا تنکا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اب آپ جتنا بھی اس کو صفائی کریں گے نا باریک سے باریک گند بھی آپ کے فرش کے اوپر سے نکالے گا، مٹی ڈسٹ اچھی طریقے سے نکال دے گا فرش کے اوپر سے۔ دیکھ سکتے ہیں باریک سے باریک تنکے بھی اس نے اکٹھے کر دیے ہیں اور ڈسٹ بھی اچھی طریقے سے یہ ساری نکل رہی ہے۔ تو اگر آپ کا بھی یہ والا مسئلہ ہوتا ہے نا جھاڑو استعمال کرنے کی وجہ سے آگے سے تنکے مڑ جاتے ہیں یا خراب ہو جاتا ہے یا پھر نیا جھاڑو لے کر آتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ والا چھوٹا کام لازمی کر لیا کریں، تو آپ کا جو بڑا مسئلہ ہے نا وہ ضرور حل ہو جائے گا۔ تو امید کرتی ہوں میری پیاری بہنوں کا بھی یہ والا آئیڈیا ضرور پسند آئے گا۔ چلیں نیکسٹ آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بھی اس طریقے سے بیکار سی چوسری نپل پڑی ہوتی ہیں، آپ ان کو بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، تو آج کے بعد آپ نے یہ بڑا کام بالکل نہیں کرنا، بلکہ اس بیکار سی پڑی ہوئی چوسری کو نپل کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کس چیز کے لیے تو چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کینچی کی مدد سے اوپر سے نپل ہے نا اس کی کٹنگ کر لینی ہے، باقی حصہ بے شک بیکار آپ اس کو پھینک سکتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو ہمارے پاس ربڑ آ گئی نا یہ چوسنی آ گئی، نپل آ گئی ہے، اس کا استعمال ہم کہاں پہ کریں گے، کس چیز کے لیے کر سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازار سے جب ہم اپنی مہنگی مہنگی جولری وغیرہ لے کر آتے ہیں نا اس کے جو آگے سے سٹاپر ہوتے ہیں نا وہ یا تو گم ہو جاتے ہیں، ملتے نہیں ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس طریقے کی جو چوسنیاں پڑی ہوتی ہیں، نپل پڑی ہوتی ہیں ہمارے گھر پہ بچوں کی جو استعمال میں نہیں ہوتی، تو ان کی آپ اس طریقے سے کٹنگ کریں اور آپ اپنے جو نا اپنے اکارڈنگ ہی اس کے ٹاپس کے یا کانٹوں کے اکارڈنگ ہی آپ اس کی کٹنگ کریں گے۔ جتنے سائز کا چھوٹا ہوگا اتنا ہی آپ نے اس کی چھوٹی چھوٹی سی نا سٹاپر سے بنا لینے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ 2 بنا لی ہیں، اب میں آپ کے ساتھ نا کانٹوں پہ لگا کے بھی چیک کرواتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے ایئرنگ لے لی ہیں تو ان کے اوپر میں لگا کے چیک کروں گی، کیونکہ یہ جو وزنی والے ہوتے ہیں نا خاص طور پہ ان کے سٹاپر اکثر ہی ہمارے گم ہو جاتے ہیں، ملتے ہی نہیں ہیں اور بازار سے بڑے مہنگے ملتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو جلدی سے سستے ملتے بھی نہیں ہیں۔ تو اگر آپ بھی یہ والا جگاڑ اپنے گھر پہ کر لیں گے تو آپ کا جو بڑا مسئلہ ہے نا وہ ضرور حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اس کا جو سوراخ ہے نا اس کی مدد سے ہی کرنا ہے، کسی بھی چھری کینچی کی مدد سے آپ نے اس کی کٹنگ نہیں کرنی۔ تو یہ میں نے اسی کی ڈنڈی کے ساتھ ہی میں نے اس کا نا آگے سوراخ کر لیا۔ اب آپ دیکھیں یہ آسانی سے نکل بھی جاتا ہے اور آسانی سے آپ اس کے اندر واپس ڈال بھی سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اچھی ٹپ تھی، بہت ہی اچھا ہیک تھا، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی اس ٹپ کو شیئر کر دوں، ہو سکتا ہے میری کسی پیاری بہن کی نا مشکل آسان ہو جائے۔ اگر آپ بھی اس طریقے سے رکھی ہوئی پھینک دیتے تو لازمی اس کو ٹرائی کیجیے گا۔ نیکسٹ ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جب بھی ہمارے پاس اس طریقے سے چابیاں پڑی ہوتی ہیں الماری کے اندر تو یہ اکثر یہ چھوٹی چھوٹی چابیاں ہماری گم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ان چابیوں کو ان بیکار چوڑیوں کے ساتھ آپ سنبھال سکتے ہیں۔ کوئی سے بھی
आपने मेटल की इस तरीके की चूड़ियाँ ले लेनी है, जो भी आपके पास छोटे साइज़ की पड़ी हों या बड़े साइज़ की। तो मैं छोटी वाली चूड़ी का इस्तेमाल करूँगी। तो आपने क्या करना है, इन चाबियों का इस्तेमाल करने के लिए आपकी चाबियाँ जो अक्सर हमारी गुम हो जाती हैं जगह जगह, तो मिलती नहीं है ना, तो इनको आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, यानी कि अपनी जगह पर सिक्योर एक ही जगह पर सारी चाबियों को रख सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक मेटल की चूड़ी ले लूँगी, जहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ, मैं छोटी वाली चूड़ी का इस्तेमाल करूँगी। कैंची की मदद से आपने जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। इसकी बड़ी आसानी से कैंची से ना इसकी कट हो जाती है, तो आप कैंची की मदद से इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा इसके अंदर कट लगाया। अब इसको खोल कर अपना जो ना की रिंग आप इसको बना कर ना इसके अंदर सारी चाबियाँ, अपने घर की जितनी भी चाबियाँ ना, आप सारी चाबियों को इसके अंदर डाल सकती हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से सारी चाबियाँ आपकी एक ही ना चीज़ के अंदर सिक्योर होगी। महंगे की रिंग की भी ज़रूरत नहीं है, अपने घर पे ही जुगाड़ लगा सकते हैं। अब आप अपनी अलमारी के अंदर या किसी भी यानी कि की रिंग वाले स्टैंड पर इनको एक ही जगह पर रख दें, ताकि आपको जब भी ज़रूरत हो तो आपको आसानी से मिल सके। उम्मीद करती हूँ ज़रूर टिप पसंद आएगी। अगर आप अपने खानों को मज़ेदार बनाना चाहते हैं, चटपटा सा और ज़ायकेदार खुशबूदार बनाना चाहते हैं, तो आज इस जादुई मसाले को बनाकर तैयार कर लें। जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ले लिए ज़ीरे के, 1 चम्मच लिया मैंने साबुत सूखा धनिया का, 1 चम्मच मैंने लिया है सौंफ का, उसके बाद मैंने आधा चम्मच लिया सूखी मेथी का, और 1 टीस्पून आपने लेनी है यहाँ पे अजवाइन। एक आपने बादियान का फूल लेना है और आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने इसको ड्राई रोस्ट लाजमी करना है, फ्राई पैन के अंदर डाल के या तवे पर डाल के फिर इसको पीस लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको पीस लिया ग्राइंडर के अंदर डालकर। बहुत ही ज़बरदस्त आपका ये मसाला तैयार हो गया। जब भी आप सालन पकाएंगे ना, तो इस जादुई खुशबू मसाले को बस आपने एक चुटकी, जैसे हम मसाले ऊपर छिड़कते हैं, बस आपने एक चुटकी मसाला इस तरीके से अपने खानों पर छिड़क देना है। अब आपके खाने बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपने भी कभी इस तरीके जूतों पर नील नहीं डाला, तो आज आपने ये काम लाजमी कर लेना है। अगर आपके भी इस तरीके से जूते स्कूल के लिए आप इस्तेमाल करते हैं और आपके पास अर्जेंट कोई सी भी पॉलिश वगैरह नहीं होती, तो आज आपके साथ ये जो तरीका शेयर कर रही हूँ ना, इसके लिए आपको किसी भी पॉलिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर पे ही जादुई तरीके से इस तरीके से पॉलिश को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे कि स्कूल के शूज़ होते हैं या ऑफिस के शूज़ होते हैं ना, तो आपने सबसे पहले नील लेना है। 2 से 3 कतरे आपने नील के ले लेने हैं। उसके अंदर आपने ऐड करना है सरसों का तेल, वो भी आपने तकरीबन 1 चम्मच आपने सरसों का तेल इसके अंदर है ना ऐड कर देना है। तो मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा बना रही, क्योंकि मैंने पहले बना के रखा हुआ था, इसीलिए सिर्फ आपके साथ तरीका शेयर करना था, तो इसीलिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा दोबारा से बनाकर आपके साथ तरीका शेयर कर रही हूँ। अब आपने अच्छे तरीके से इसको ना मिक्स कर लेना है। किसी भी आपने कॉटन के साथ या ना टिश्यू के साथ या फिर छोटा मोटा कपड़े का पीस ले लेंगे। उसके साथ आपने अपने जूतों को अच्छे तरीके से इसी के साथ आपने पॉलिश करना है। मैं आपके साथ तरीका शेयर करती हूँ, आपने भी इसी तरीके से अपने जूतों को ना अच्छे तरीके से चमका लेना है, साफ़ कर लेना है। बच्चों के जो स्कूल के शूज़ होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। रोज़ रोज़ अगर इसको साफ़ ना करें तो बच्चे तो रोज़ ही गंदे करके ले जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो उछल कूद करते हैं उनकी वजह से उनके जूते ना बहुत ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, मैं इसी कपड़े के साथ एक छोटा सा मैंने कपड़े का पीस लिया है, उसके साथ मैं सारे जूते को इस तरीके से पॉलिश कर लूँगी। आपके चाहे जितने भी मैले कुचैले और गंदे जूते होंगे ना, सारे ही इसी तरीके से साफ़ सुथरे हो जाएंगे, चमक उठेंगे, उनके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से शाइन आ जाएगी। दूसरी बात ये है कि मेरी बहुत सारी प्यारी बहनें कहेंगी कि इसके ऊपर जो तेल लगाया, नील लगाया, बच्चों के कपड़ों पर लग जाएगा। बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आगे आपने पूरा तरीका देखना है। अगर आप पूरा तरीका देखेंगी तभी आपको समझ आएगी। ये बिल्कुल भी आपके कपड़ों के साथ नहीं चिपकेगा, ना ही आपके बच्चों के कपड़े भी यहाँ पे बिल्कुल भी आपके ख़राब नहीं होंगे। बस आपने इस लाजमी तरीके को पूरा तरीका देखना है। अब आपने क्या करना है, ये लगा लिया। उसके बाद आपने एक साफ़ सादा कपड़ा लेना है, उसके साथ अपने पूरे जूते को इस तरीके से साफ़ कर लेना है, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो सारा इसके साथ साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आपके जूते चमक उठेंगे, बिल्कुल भी आपके कपड़े ना गंदे नहीं होंगे। लाजमी इस टिप को ट्राई कीजिएगा, आपके बहुत सारे पैसों की बचत होने वाली है। बिल्कुल भी आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ दोनों जूतों की हालत, कि आपने जो जूता पॉलिश किया है उसकी हालत चेक करें, जो नहीं किया उसको भी आप देख सकते हैं। दोनों में डिफरेंट आपको पता लग जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से हमारा जूता साफ़ हो जाता है। और आपको चेक करवाती हूँ, देखें कोई भी ऑयल भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा नहीं लगा हुआ, सारा हमने इसको कपड़े के साथ साफ़ कर लिया है। और आपका जूता बहुत ही अच्छे तरीके से चमक भी गया है और साफ़ सुथरा भी हो गया, बगैर किसी पॉलिश के, बगैर किसी महंगे ब्रांड की किसी भी चीज़ के। कोई शाइनर की ज़रूरत नहीं है, किसी
पॉलिश की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से अपने घर पे ही जुगाड़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आइडिया पसंद आया तो लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरी बहनें लाजमी मुझे कमेंट करके बताया आपको ये वाली टिप पसंद आई तो इसको लाजमी शेयर भी कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। नेक्स्ट टिप शेयर करिए कपड़ों को चमकाने का ऐसा तरीका, इन जादुई गोलियों के साथ आप भी अपने मैले कुचैले कपड़ों को साफ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे भी कपड़े गंदे करके ले आते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म खासतौर पे जो सफ़ेद कपड़े होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदे और मैले हो जाते हैं, साफ भी नहीं होते। इस तरीके से आप अपने कपड़ों को साफ कर सकते हैं। इन गोलियों को सबसे पहले आपने पीस लेना है। ये मेरे पास 2 एक्सपायरी गोलियां थी, मेरे पास यहाँ पे ये पैनाडोल की 2 एक्सपायरी गोलियां थी। आप चाहे डिस्प्रिन की भी ले सकते हैं या फिर कोई से भी आपके पास टैबलेट होना, खास तौर पे जैसे कि पैरासीटामोल या पैनाडोल या फिर डिस्प्रिन, कोई सी भी इस तरीके की 2 टैबलेट ले लेनी है। उनको इस तरीके से आपने पाउडर बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल जो आपके पास मीठा सोडा होता है ना, 1 चम्मच भरकर आपने इसके अंदर डाल देना है मीठा सोडा। ये लाजमी डालना है क्योंकि जो कपड़ों के दाग धब्बे नहीं निकलते ना वो इससे लाजमी निकल जाते हैं और कपड़ों की जो एक्स्ट्रा स्मेल होती है ना उसको भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव कर देता है। इन दोनों चीज़ों को आपने सबसे पहले चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आपके साथ पूरा तरीका शेयर करूंगी, आप अपने कपड़ों को किस तरीके से वॉश करेंगे जिसकी वजह से आपके कपड़े भी शाइन करने लग जाएंगे और गहरे और ज़िद्दी दाग सारे रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे आप तकरीबन मैं इसके अंदर 6 चम्मच सरफ के ऐड करूँगी। अगर आपने 2 टैबलेट यूज़ की ना उसके अंदर आपने एक जो 50 रुपये का पैकेट होता है ना सरफ का वो पूरा आपने इसके अंदर ना डाल देना है। तो ये 5 से 6 चम्मच सरफ के ना वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। उसके बाद आपके साथ पूरा तरीका ना इसका शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर सरफ का डाल दिया। अब मैं जो इसके अंदर अगली चीज़ डालूंगी ना वो है जी यहाँ पे फैब्रिक सॉफ्टनर, क्योंकि कपड़ों के अंदर जो स्मेल हो जाती है ना रोज़ रोज़ गर्मियों में कपड़ों के अंदर एक अजीब सी स्मेल होती है। सरफ से कपड़े धोने के बावजूद भी स्मेल कपड़ों की नहीं जाती। लेकिन अगर आपके पास फैब्रिक सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकती हैं, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन जिन बहनों के पास होगा तो आप इसको लाजमी यूज़ कीजिएगा। तकरीबन आधे चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डाल देना है फैब्रिक सॉफ्टनर। अच्छे तरीके से आपने इसको सरफ के अंदर ना मिक्स कर लेना है। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है। मिक्स करके आपने अपने कपड़ों को इसी के साथ ही वॉश करना है। यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इसको कर लीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है ना वो भी आपको मिल सके। तो अच्छे तरीके से आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 1 मैंने टब ले लिया, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। दूसरी बड़ी गलती आप ना यहाँ पे पानी ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं और सरफ को कम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो कपड़े हैं ना वो अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होते। आप कोशिश किया करें कि जितने के हमारे सूट है ना, यानी कि 2 सूट है ना, उसके अंदर पानी के अंदर डिप हो जाए उतना ही आपने पानी यूज़ करना है। यहाँ पे बच्चों की यूनिफॉर्म थी वॉश करने वाली तो मैं उनको ही वॉश कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप भी इसी तरीके से कीजिएगा कि पानी आपने उतना ही यूज़ करना है, ज़्यादा भरकर आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना। और इतना पानी यूज़ करने के कपड़े अच्छे तरीके से उसके अंदर ना भीग जाएँ, उसके ऊपर एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए। तो जितना पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे, सर्फ कम यूज़ करेंगे, तब भी आपके कपड़ों के ऊपर से दाग धब्बे नहीं निकलते, ऐसे के ऐसे ही गंदे रहते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चों के सफ़ेद कपड़े थे ना, यूनिफॉर्म थी, तो मैंने उनको ही यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उनको मैं यहाँ पे डालकर आपने दूसरी बात ये करनी है कि इनको भिगो के नहीं रखना, फटाफट से आपने सारे कपड़ों को इसी तरीके से साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सरफ के अंदर इनको डाल के रख दिया था तकरीबन 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए आप इनको सिर्फ छोड़ेंगे। ये नहीं कि आप आधा घंटा या ना घंटा इसको पानी के अंदर इसी तरीके से रखें। ऐसा करने से हमारे जो कपड़ों का रंग है ना वो भी ख़राब हो जाता है, सारे कपड़ों के दाग ना निशान पड़ जाते हैं, एक दूसरे के निशान पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं, हमारे कपड़ों पे निशान लग गए। तो आपने फटाफट से सरफ के अंदर डाल के बस 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने हाथों की मदद से ही इनको वॉश करना है। ख़ासतौर पे वो वाले कपड़े जो कि जिनके कॉलर वगैरह और कफ वगैरह गंदे हो जाते हैं ना, वो आपने हाथों के साथ वॉश करेंगे तब भी साफ़ होगा। जितना चाहे आप मर्जी मशीन के अंदर सरफ को डाल दें, आपके कपड़े साफ़ नहीं होते। तो ये वाली टिप आपने लाजमी याद रखनी है। छोटी सी जो टिप्स होती हैं जिनको अगर आप याद नहीं रखते तो आप अपना सरफ भी ज़ाया कर चुके होते हैं और पानी भी ज़ाया कर चुके होते हैं और आपके कपड़े भी अच्छे तरीके से क्लीन नहीं होते। तो ये छोटा सा काम आप कर लेंगे, आपके कपड़े भी चमक जाएंगे, सारे दाग धब्बे भी निकल जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको हाथों की मदद से मसल के साफ़ कर रही हूँ। आप चाहें इसी पाउडर को मशीन के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके ज़्यादा कपड़े जो मैले होते हैं ना वो आपने हाथों की मदद से ही साफ़ करने हैं, तभी आपके जो कपड़े ना मैले वाले साफ़ होंगे। इसी तरीके से सारे कपड़ों को आपने अच्छे तरीके से मसल के साफ़ कर लेना है। तो अगर मेरी प्यारी बहनों को आज की वीडियो पसंद आई है ना तो आपने मेरे चैनल को लाजमी
سبسکرائب کرنا ہے، اور آپ نے مجھے بتانا بھی ہے کہ آپ کو نیکسٹ کون سا آئیڈیا چاہیے تاکہ میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کر سکوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کپڑے اچھے طریقے سے کلین ہو گئے، صاف ہو گیا۔ اب میں ان کو سادہ پانی کے ساتھ واش کر کے تو میں ان کو لٹکا دوں گی۔ تو آپ کے ساتھ جو میں نے طریقہ شیئر کرنا تھا نا، وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا۔ یہاں پہ اب اس کو بنا کر آپ نے کسی بھی ڈبے کے اندر ڈال کر اس کو رکھ لینا ہے۔ جب بھی آپ نے بچوں کی یونیفارم دھونی نا، اسی کے ساتھ ہی دھونی ہے، خاص طور پہ جو جینٹس کے کپڑے ہوتے ہیں نا سفید والے، وہ بھی بہت میلے ہو جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئے گی۔ میری نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ۔